Hello everyone, and welcome to the second part of the video on data types, variables, memory concept and operators. So if you haven't watched the first portion of the video, I will put a link in the description below. You please go and watch before watching the second part of the video. Okay. During compilation, okay, and second point we have is the operating system allocates the actual memory when the program run okay, when the program run. तो यहाँ पे सेम एग्जांपल्स में इसी वेरिएबल्स के लेना चाहता हूँ. ओके, यहाँ पे देखिए, let's say example we have is again int x equal 5. Okay, so let's say if you have written this line in your code, सपोज आप मान लीजिए कि ये लाइन को आपने प्रोग्राम पे लिखा है. ओके, तो फर्स्ट हमारा कंपाइलर जो है ओके, so the work of the compiler is something that it helps to convert the high level language into a machine level language. Okay, and then second part is that, see, the compiler will decide, okay, that this variable should get space in the memory RAM. मीन्स जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उस वक्त हमारा कंपाइलर ये डिसाइड करेगा कि ये वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल ये है x, राइट, तो ये वेरिएबल को स्पेस मिलना चाहिए रैम पे. मीन्स लेट्स मान लीजिए कि ये हमारा मेमोरी है जो कि रैम है, और यहाँ पे ये वेरिएबल x है, तो यहाँ पे इसको एक लोकेशन मिलना चाहिए. ये डिसाइड कौन करेगा? Who will decide? Decides by compiler. Okay, and after some time when you will run this program, okay, so when you will run this program, जब प्रोग्राम रन करेगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम x वेरिएबल के लिए कोई एड्रेस प्रोवाइड करेगी. मीन्स जब आप प्रोग्राम को रन करोगे उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम ये वेरिएबल एक्स वेरिएबल के लिए कोई एक एड्रेस प्रोवाइड करेगी. मान लीजिए वो एड्रेस है 001A मान लीजिए, और एड्रेस को हम लोग एड्रेस को हम लोग ये सिंबल से जानते हैं. इसको हम लोग को कहेंगे एड्रेस ऑफ, और एम्परसेंड भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो एड्रेस ऑफ एक्स बोलेंगे इसे. सो एड्रेस ऑफ एक्स का वैल्यू होगा यहाँ पे 001A. ओके, सो ये एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, so that means see, this 5, I told you already that this is a assignment operator, so this 5 is going to stay here. So that means inside x we have the value 5. Okay, and then this address is given by the operating system. This address is given by the
operating system. Okay, this is given by the operating system. Understood? So that means, see, again one more thing I want to tell you here is this line. A value which can be changed during the execution of a program. So इसका मतलब क्या है? Let's say ये वैल्यू, हम लोगों का ये वैल्यू चेंज हो सकता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेंगे तो उसका मतलब ये है कि मान लीजिए फिर से हम लोग ये लिखेंगे कि x का वैल्यू अभी 10 है. ओके, सो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे x का वैल्यू हमारा 5 है और लोकेशन सेम है जो कि 001 है. और जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे उस वक्त फिर से हमने वैल्यू दिया x का वैल्यू 10 जो कि सेम लोकेशन पे है. तो ये क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू जो कि ओवर रिटर्न हो जाएगा और अपडेट होके आपका 10 रह जाएगा यहाँ पे. ओके, 10 रह जाएगा. सो दैट इज़ द मीनिंग. ओके, सो ये मीनिंग है हमारा ये लाइन का, ये लाइन का. A value which can be changed during the execution of a program. Okay, so that is the meaning. And with this all concept now we can learn. Okay, we can learn the addition, subtraction, multiplication. Okay, any types of computation programs. Okay, so let me give you one simple code. Okay, let's say question is, let's say write a, let us learn for C program. Okay, write a C program to add, let's say to add, or you can say, yeah, to add or subtract, okay, or multiply or divide the two numbers. Okay, so for this, see what we have to do is, let's say, so यहाँ पे हम लोग सी प्रोग्राम की मदद से कुछ कंप्यूटेशन प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि हमारा एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो कि 2 नंबर पे होगा. ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को हेडर फाइल कंसीडर करना होगा सी प्रोग्राम का. सो इफ़ यू हैवेंट वॉच my previous video, then please go back to the channel and watch. Okay, there I already explained the difference between the C program and C++ program. So let's say here we will include the header file include stdio.h, okay, int main this. So it is followed by the 2 curly braces. So let me write the variable. So all this name I will consider as a variable name. Okay, so let's say one variable we have is add, second variable we have is subtraction, third is multiplication, and then division. Okay, and then see, definitely in order to do addition, subtraction, multiplication or division we need the 2 number. Okay, so what will be that 2 number? You can say either
let's say first number we have is A and second number we have is B. Okay, so in this calculation, okay, I want my data to be of integer type. Okay, हम लोगों को यहाँ पे मैं हमारा जो कोई भी डेटा होगा वो इंटीजर टाइप का होगा. सो दिस स्टेप इज कॉल्ड variable declaration. I hope you remember. Okay, here we are declaring the data type, okay, of the variable. See, these are all the variable, okay, and here I have declared the data type. Means I mean a variable a, b at sum, multiplication and division, all this have the same data type, that is int. Okay, yeah. So with the help of print function, okay, with the help of printf function, we can just give a message that, see, let's say enter the value of a, enter the value of a. Okay, see, why I use here C program in place of C++ is in order to explain this line. Okay, see, scan f percentile d is the access specifier for integer number. Okay, and then address of a, and then again let's see printf enter the value of b, enter the value of b, enter the value of b. So we will give the user input. Okay, so यहाँ पे हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे स्कैन एफ फंक्शन के मदद से. ओके, सो इनपुट हमारा क्या होगा, इंटीजर टाइप. सो इंटीजर टाइप इनपुट के लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेंगे जो कि हमारा परसेंटाइल डी रहेगा, और ये वैल्यू हमें कहाँ पे स्टोर करना है, बी पे स्टोर करना है. सो ये वर्ड को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये है हमारा एड्रेस. ओके, सो एड्रेस ऑफ ए, और इसको हम बोल सकेंगे एड्रेस ऑफ बी, राइट. सो दैट इज द थिंग. तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम लोग यूज़र के द्वारा इनपुट लेंगे. ओके, किसके मदद से, स्कैन एफ फंक्शन के मदद से. ओके, एंड देन वी कैन से जब हमारा दो वेरिएबल्स का वैल्यू हमारे पास होगा तो हम आसानी से ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इवन डिवीज़न भी कर सकेंगे. सो वी कैन से हियर लेट्स से ऐड इज इक्वल टू a plus b, right. We can do like this, or we can say let's say subtraction will be equal to a minus b, ये कर सकेंगे हम लोग. और multiplication will be equal to a multiplication or multiply b, or let's say division will be equal to a divide b, ये कर सकेंगे. Okay, and then after this we can successfully print the value of add or either subtraction or multiplication or division. Okay, so for the final step we will simply print the value of the final variable, that is add, subtract, multiplication and division. So यहाँ पे हम लोग हमारा फाइनल वेरिएबल का वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे. मीन्स प्रिंट एफ, यहाँ पे हम मैसेज दे सकेंगे. ओके, द एडिशन इज, किसका एडिशन है, हमारा इंटीजर नंबर का. तो यहाँ पे हम एक्सेस स्पेसिफायर ऑब्वियसली हम लोग को मेंशन करना होगा जो कि इंटीजर डेटा टाइप का होता है परसेंटाइल डी. और यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू हम लोग को प्रिंट करना है,
ऐड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड, ओके, एंड देन सेमीकोलन. और in the same way, if we want to print the value of subtraction, then in the same way we can do, let's say printf, and then here let's say the subtraction is, let's say, percentile d, and then here sub, right? In the same way we can do for the multiplication also. In the same way we can do it for the division. So multiplication और division का भी हम लोग सेम तरीका से कर सकते हैं. उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना होगा, रिटर्न ज़ीरो, ओके, रिटर्न ज़ीरो, एंड देन वी हैव टू क्लोज द मेन फंक्शन. सो इस ब्रैकेट को हम लोग को क्लोज करना होगा, राइट, दिस मच, ओके. एंड देन okay, let me explain the program. So the basic portion of the program I have already explained. So if you haven't watched, then please go back to my channel and watch the previous videos, okay. So इस वीडियो पे मैं यहाँ से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके. तो जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ओके, जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप ये कंसीडर कीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक रैम है, ओके, रैम है, और ये रैम पे सारा वेरिएबल एलोकेट हुआ है, ओके. सो ए ब्लॉक क्रिएट होगा, वैसे ही बी ब्लॉक भी क्रिएट होगा, ओके, एंड देन 8 नाम का ब्लॉक भी क्रिएट होगा, और सब block will be created, okay, and then multiplication and then division, okay, division. And one more thing you should know, that all these variables, I mean all this location address will be given by the operating system. हर एक particular address का location का, I mean लोकेशन का एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाएगा, ओके. सो दैट मीन्स, लेट्स से मान लीजिए कि इस लोकेशन का एड्रेस है 001A, और मान लीजिए इस लोकेशन का एड्रेस है 001B. वैसे ही हर लोकेशन का एड्रेस हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करेंगे, okay. So let's say this is 001C, 001D, 001E, and then 001F. Just consider this, okay. So that means, see here, see, enter. सो विथ दिस लाइन, ओके, सो इस लाइन से हम लोग का ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि रैम के अंदर होगा, अंडरस्टूड. सच टाइप ऑफ थिंग्स विल बी क्रिएटेड इनसाइड द रैम, ओके. एंड देन सी ऑल द बॉक्सेस आर ब्लैंक. यहाँ पे सारा बॉक्सेस ब्लैंक है, तो डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करना होगा. सो वैल्यू इंसर्ट करने से पहले एक मैसेज देना ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि यूज़र को पता चले, ओके. सो विद द हेल्प ऑफ printf we are giving the message, okay, like enter the value of a, okay. So that means with this what we understood, that okay, we need to enter a value, okay. मीन्स इस लाइन से हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग को a को एक वैल्यू प्रोवाइड करना है, ओके. तो हम लोग यूज़र इनपुट के द्वारा, मीन्स कीबोर्ड के माध्यम से हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके. तो स्कैनफ फंक्शन विल बी यूज, ओके. स्कैनफ फंक्शन यूज होगा यूज़र इनपुट प्रोवाइड करने के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग का डेटा टाइप है इंट,
ओके। सो जब इंट होगा तो एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं इसको, ओके। तो जब यहाँ पे हमारा डेटा टाइप इंट होगा तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा परसेंटाइल डी, ओके। सो परसेंटाइल डी इज, आप ये मान के चलिए कि ये परसेंटाइल डी एक नंबर है, ओके। ये एक नंबर है, क्या नंबर है ये? इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर, अंडरस्टूड। सो दैट मीन्स ये एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सो इसका मतलब डेफिनेटली आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे कीबोर्ड के माध्यम से। मान लीजिए कि आपने 20 प्रेस किया है, ओके। मान लीजिए आपने 20 टाइप किया है, तो आप ऐसा समझना जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस वे, ओके। तो आप ऐसा समझना कि 20 जो कि वैल्यू है वो परसेंटाइल डी के जगह पे है, आपको ऐसा मान लेना है, ओके। तो आफ्टर दिस इट हैज़ टू गो इन द एड्रेस ऑफ ए, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स जो वैल्यू हमने टाइप किया था 20, वो वैल्यू कहाँ पे जाना है इनको? एड्रेस ऑफ ए, ओके। सो एड्रेस ऑफ ए का वैल्यू क्या हमने दिया था? 001 ए। सो एड्रेस ऑफ ए, ओके। सो एड्रेस ऑफ ए का वैल्यू क्या है हमारा? 001 ए। दैट मीन्स आप क्या जानते हो इसके बारे में? मीन्स 20 जो कि वैल्यू जो हमने टाइप किया था उसको जाना है इस लोकेशन पे, आई मीन 001 है, ओके। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो कि हमारे ए लोकेशन पे, यहाँ पे हमारा होगा 20, ओके। यहाँ पे हमारा होगा 20, आप ऐसा समझ सकते हो इसको, ओके। सो इन दिस वे, इन द सेम वे से यहाँ पे हम लोग सेम तरीके से बी का इनपुट भी ले रहे हैं, ओके। सो एंटर द वैल्यू ऑफ बी। सो अगेन इसके है परसेंटाइल डी एंड एड्रेस ऑफ बी। So just you think that address of B is actually what? 001B, okay. So percentile D is what? It is the access specifier. So that means you will insert the value by means of scanf, okay. Same story is repeating, okay. Let's say this time you entered, let's say 10, okay. Second time आपने let's say 10 एंटर किया है, okay. So 10, इस 10 वैल्यू कहाँ पे जाएगा? इस एड्रेस पे जाएगा, ओके। सो दैट इज 001B। सो इन दिस वे 10 विल बी स्टोर्ड हियर। सो इसी तरीके से 10 यहाँ पे हमारा स्टोर होगा, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे ए वैल्यू 20 है और बी वैल्यू 10 है। तो जब हमारा 2 नंबर्स है तो डेफिनेटली हम लोग ऐड कर सकते हैं और इधर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इवन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कर सकते हैं, ओके। सो इस फॉर्मूले की मदद से हम कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, तो इस टर्म को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, कहाँ पे? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पे, ओके। सो मैंने कहा था कि राइट साइड का हमारा वैल्यू होता है और लेफ्ट साइड का हमारा लोकेशन होता है, राइट। तो हम लोग ऐसे समझेंगे इसको कि देखो कि ए का वैल्यू हमारा कितना है, इस ब्लॉक पे देख के बताओ, ये हमारा है 20, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे मान लो कि यहाँ पे हमारा 20 एंड देन प्लस ए का वैल्यू बी का वैल्यू कितना है? 10। सो मैंने ये कहा था कि राइट साइड का हमारा वैल्यू होगा और लेफ्ट साइड का क्या होगा? लेफ्ट साइड का होगा हमारा लोकेशन, राइट। लेफ्ट साइड का होगा लोकेशन, ओके। एंड ये इक्वल नहीं है, ये हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स जो भी वैल्यू हमारा राइट हैंड साइड में होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की लोकेशन में जाके स्टे करेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स 30 will be staying, okay, 30 will be staying in the location 8. So इसी तरीके से 30 यहाँ पे स्टे करेगा, ओके। सो इन द सेम वे, सेम तरीके से आप ए का वैल्यू हमें पता है 20 है और बी का वैल्यू -10। सो सब में हमारा क्या वैल्यू स्टे करेगा? 10, ओके। एंड मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या वैल्यू स्टे करेगा? जो कि 20 × 10 जो कि होगा हमारा 200। तो यहाँ पे 200 स्टे करेगा, ठीक है। और डिवीज़न में कितना होगा? सो 20 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 2, ओके। सो हियर डिवीज़न पे हमारा 2 स्टे करेगा, ओके। तो यही हम लोग को चाहिए था। देखो, राइट ए सी प्रोग्राम टू ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑन 2 नंबर्स। तो यही चीज़ को हम लोग को चाहिए था। ऐड का रिजल्ट हम लोग को चाहिए था, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड
डिवीज़न, जो कि हमने कंप्लीट किया यहाँ पे। ओके, तो अब हम सिर्फ ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे यहाँ पे। सो प्रिंट करने के लिए हम लोग को प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट करेंगे। ओके, सो प्रिंट एफ एंड सी, इसको हम लोग डबल कोटेशन के अंदर में लिखेंगे। ओके, दिस पार्ट। ओके, सी, सो द एडिशन इज, सो ये वाला सेंटेंस, ओके, ये वाला सेंटेंस एज इट इज़ हमारे आउटपुट पे आएगा। ओके, और ये परसेंटाइल डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटाइल डी क्या है? ये एक है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है, राइट। सो उसके मतलब देखिए, सो ये 8 का वैल्यू कितना है? 8 का वैल्यू है हमारा 30। ओके, ये 30 है, और ये 30 हमारा क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है। 30 हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, राइट। मीन्स 8 मीन्स 30, एंड 8 का जो डेटा टाइप है वो हमारा इंटीजर है। सो इसीलिए जब हम लोग का डेटा टाइप इंटीजर होता है तो हम लोग को परसेंटाइल डी देना होता है। ओके, सो व्हेन आवर डेटा टाइप इज एक्चुअली इंटीजर, ओके, एट द टाइम वी हैव टू गिव परसेंटाइल डी हियर, राइट। So that means percentile d is the access specifier, so we have to write it within double quotation mark followed by this comma, and then we have to write the actual variable what we have to print. Okay, so that one we have to write in this way. Are you getting it? Okay, so in the same way we are printing the value of subtraction also, and in the same way we can print the value of even multiplication and division. Okay, सो सेम तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोगों का रिटर्न ज़ीरो लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो इट मीन्स रिटर्न, सी वाई वी आर राइटिंग रिटर्न ज़ीरो इज, सी we came to the end of our program, okay, without creating any error. Okay, and we can close our program. So I hope this basic concept is clear to you. So if there is any problem that you don't understand, then please comment below, and thank you so much for watching, and see you in the next one. Thank you.